بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. معزز اور محترم بزرگان دین، نوجوان بھائی اور دوستو، آپ حضرات دو جمعہ سے بات سن رہے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے اور ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کا ہی مہینہ ہے. چنانچہ خطبے میں ابھی جو میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے، اس آیت پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی اس دنیا میں ہر مسلمان کی سب سے آخری منزل ہے. ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری محنتیں، ساری مشقتیں صرف اس لیے ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہم متقی بن جائیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو، متقی بن جاؤ. اب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس بات کا نام ہے کہ آدمی کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر عمل سے باخبر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر میں اچھے اعمال کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعامات سے نوازیں گے، اور اگر برے اعمال کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے کیا دیں گے بھائی؟ سزا دیں گے. تو جب اس بات کا احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اسی کا نام تقوی ہے. مثال سے بات سمجھیے. مثال کے طور پر اگر کسی ملک کا وزیر اعظم یا کسی ملک کا صدر اگر ہم میں سے کسی کو جو ہے دعوت پر بلائے اپنے گھر ڈنر پر یا لنچ پر، تو جب اس کے گھر جائیں گے، بادشاہ کے دربار میں جائیں گے دعوت پر ڈنر کرنے کے لیے، لنچ کرنے کے لیے، تو جب ہم وہاں داخل ہو رہے ہوں گے تو ہمارے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار میں ایک بڑے آدمی کے گھر جا رہا ہوں جو فلاں فلاں ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے. تو یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو مجھے انعامات سے بھی نواز سکتا ہے، چاہے تو مجھے سزا بھی دے سکتا ہے. اس بات کا احساس اس وقت ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے دربار میں جانے کے بعد مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو بادشاہ کی شان کے خلاف ہو، بادشاہ کے دربار کی شان کے خلاف ہو، جس کے نتیجے میں بادشاہ مجھے دربار سے نکال بھی سکتا ہے. اس بات کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہی احساس ڈالنا چاہتے ہیں، یہی احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو، تم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہو، لہٰذا اپنے ذہنوں میں یہ بات ڈال دو اور تمہارے ذہنوں میں یہ اس بات کا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو بھی میں عمل کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پر مجھے جزا اور سزا ضرور ملے گی. یہ احساس ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ آج ہم انسانوں کی نگرانیوں سے اور انسانوں کے دیکھنے سے جو ڈرتے ہیں، گناہ کرنے سے، برائیاں کرنے سے، انسان دیکھے گا، انسان کی ہم نگرانی میں ہیں تو ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی نگرانی سے ہم نہیں ڈرتے، اللہ کے دیکھنے سے ہم نہیں ڈرتے. دیکھو جیسے ہم
जाते हैं किसी होटल में, हम जा रहे हैं किसी मॉल में जा रहे हैं, और आजकल तो ऐसा मामला है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो आप देखोगे जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है तो वहां लिखा क्या होता है भाई, क्या लिखा होता है इंग्लिश में? यू आर अंडर वॉच। पता नहीं जो भी लिखा हुआ होता है वहां ये लिखा होता है कि भाई कैमरा तुम्हारी निगरानी कर रहा है। क्या होता है वहां पे लिखा हुआ हमारी जुबान में? तुम कैमरे की निगरानी में हो, कैमरा तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी निगरानी कर रहा है। तो जब हम इस बात को पढ़ते हैं, वहां देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो फौरन हमारे दिलो दिमाग में ये एहसास पैदा हो जाता है कि यार यहाँ तो कैमरा लगा हुआ है। लिहाजा हम इस बात की कोशिश करते हैं कि जिस जगह भी हम गए हुए हैं, होटल हो, कोई ऑफिस हो या कोई मॉल हो, तो हम इस बात की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ पर हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए जो यहाँ के रूल्स और यहाँ के उसूल और कवायद के खिलाफ हो। कोशिश करते हैं कि नहीं इस बात की? क्यों कोशिश करते हैं? अगर हम उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे कहीं ऐसा न हो कि कैमरे में हमारी रिपोर्टिंग आ जाए और फिर हमें जो है उसकी सजा दी जाए या जो भी उस पर फाइन बैठेगी। इस बात का एहसास होता है तो हम क्या करते हैं, अच्छे से रहते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती और कोई गलत काम न हो जाए। तो हम ये इंसानों की निगरानी से हम डर रहे हैं, कैमरे की निगरानी से हम डर रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का कुरान हमें पुकार कर ये कह रहा है, इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें अल्लाह तबारक व तआला की निगरानी का जरा भी एहसास नहीं होता। दुनिया के देखने से, कैमरों के डर से हम गुनाह से बचते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो हमें ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हर वक्त देख रहा हूँ, और हमारा हर कौल, हर फेल, हमारा हर काम, हमारी बात अल्लाह तबारक व तआला की हर रिकॉर्ड है और महफूज है। और अल्लाह फरमाते हैं जब क़यामत होगी और मैदान महशर में तुम हाजिर होगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं किताबन यल्काहु मंशूरा इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जब क़यामत में तुम लोग हाजिर होगे तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारा नाम अमल तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा कि पढ़ो अपना नाम अमल, तुम खुद आज अपना हिसाब लेने के लिए काफी हो। तो गोया कि हमारी हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की यहाँ रिकॉर्ड है, हर चीज महफूज है। तो इस बात का एहसास अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर पैदा कराना चाहते हैं, और इस बात के एहसास के पैदा होने का दूसरा नाम क्या है भाई? बोलो, तक़वा है। और फिर आपको मालूम होना चाहिए रोजा, रमजान मुबारक का रोजा हमें यही एहसास हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। रोजे के जरिए से इसी चीज का एहसास हमारे अंदर पैदा होता है कि रोजा रखकर, अब रोजा रखने के बाद भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, खाना भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, और खास बात यह है कि तन्हाई का मौका है, लेकिन उसके बावजूद कोई मुसलमान भूख की शिद्दत बर्दाश्त करेगा, प्यास की शिद्दत की वजह से कांटे उसके हलक में पड़ रहे होंगे, लेकिन कोई भी मुसलमान न खाना खाने की हिम्मत कर सकता है, न एक पानी का घूंट पीने की हिम्मत कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का एहसास है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे देख रहे हैं। अगर दुनिया की आंखें न देखी कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे देख रहे हैं, इस बात का एहसास उसके अंदर पैदा हो जाता है। इस रोजे के जरिए से इस एहसास के पैदा होने का नाम ही क्या है भाई? तक़वा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोजे के जरिए से हमें तक़वा कब हासिल हो रहा होगा? तो उसका जवाब ये है कि रोजे के जरिए से तक़वा में उसी वक्त हासिल हो सकता है जब हम रोजा रखकर जिस तरह हमने हलाल चीजों को छोड़ा, उस तरह हमें हराम चीजों को भी छोड़ना होगा। जैसे रोजा रखकर हमने खाना पीना छोड़ा, तो इस तरह रोजा रखकर हमें हराम चीजों को भी छोड़ना होगा, गीबत को भी छोड़ना होगा, और झूठ को भी छोड़ना होगा, और गंदी चीजें देखना भी छोड़ना होगा, और फिर गलत और हराम की चीजें अपने पेट में उतारना, और सूद का कारोबार और हराम का कारोबार और हराम का लुक़मा अपने पेटों में उतारना, ये भी छोड़ना होगा। तभी हमें रोजे के जरिए से तक़वा हासिल होगा। वरना ये क्या बात होगी कि हमने रोजा तो रखा और फिर रोजा रखकर हम तरावी भी पढ़ रहे हैं, हमने रोजा भी रखा, तहज्जुद भी हम अदा कर रहे हैं,
नफल इबादतें भी हम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम रोजा रख कर ये तमाम चीजें तो हमने की, लेकिन रोजा रखा तो हमने अल्लाह के हुक्म की खातिर, लेकिन हम जब इफ्तार का टाइम आता है तो हराम के माल से इफ्तार कर रहे हैं, सहर का टाइम आता है तो हराम की ग़िज़ाएं अपने पेटों में उतार रहे हैं। तो आप मुझे बताइए उस रोजे के जरिए से कैसे तकवा हासिल होगा जो रोजा हमने हराम की कमाई से रखा? उस रोजे का नूर कैसे हासिल होगा? उस रोजे की बरकतें और उसकी अनवारात हमें कैसे हासिल होंगे जिस रोजे को हमने हराम माल के जरिए से इफ्तार किया और हराम माल के जरिए से हमने सही किया? नहीं हासिल होगा, क्योंकि रोजा जब तकवा उसी वक्त हासिल हो सकता है जब हम हलाल चीजों को छोड़ते छोड़ते हराम चीजों को भी, बोलो भाई, छोड़ेंगे। और सितम बालाए सितम और जुल्म पे जुल्म ये है कि हराम माल, कुछ लोग, हमारे कारोबार हराम है, हमारे मुसलमानों का लेन देन का, इंटरेस्ट का, पैसों का लेन देन है, इससे तो हम वो खुद लिख तो करते हैं, इफ्तार कर रहे हैं, सहर कर रहे हैं, लेकिन जुल्म पे जुल्म ये है कि उन्हीं माल के जरिए से, उन्हीं हराम के पैसों के जरिए से फिर इफ्तारी भी भेज रहे हैं दूसरे को, सहरी की दावतें भी कर रहे हैं और अपना भी रोजे की ऐसी की तैसी कर रहे हैं और सामने वाले की रोजे की भी वाट लगा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए फिर ऐसे रोजे से कैसे तकवा हासिल होगा, कैसे नूर हासिल? तो इसलिए हमें हलाल चीजों के साथ साथ क्या करना है भाई? बोलो, बोलिए। हराम चीजों से भी अपने आप को बचाना है जहां तक हो सके। तो ठीक है भाई, करेंगे इस पर अमल। दूसरी चीज जो रमजान मुबारक में हमें जिसका एहतमाम करने की जरूरत है, देखो रमजान का ये महीना जो होता है 30 दिनों का महीना होता है, 3 इसके हिस्से होते हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। तो हदीस पाक में आता है रमजान मुबारक का जो पहला अशरा होता है वो रहमत का होता है, दूसरा अशरा मगफिरत का होता है और तीसरा अशरा जो होता है, तीसरा हिस्सा जो होता है वो आग से आजादी और आग से छुटकारे का हिस्सा होता है। ठीक है, अब चूंकि पहला अशरा जो रहमत का अशरा है वो चल रहा है और तकरीबन आज कितना रोजा है भाई? 8वां है क्या? 9वां है? अच्छा, 9वां आज रोजा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का दिन और कल का दिन बचा है रहमत के इस अशरे के खत्म होने में। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने इस रहमत वाले अशरे से कोई खास फायदा नहीं उठाया। तो ये महीना रहमतों का महीना है, मगफिरतों का महीना है, आग से छुटकारा पाने का महीना है। तो हमें इस रहमत वाले अशरे के गुजरने से पहले अल्लाह से ये दुआएं मांगना है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाए आंसू बहाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रहम और करम की भीख हमें मांगना है, मगफिरत की हमें भीख मांगना है। और इस महीने में खास तौर से हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आह-ओ-ज़ारी करना है, अपने आंसुओं को बहाना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कहना है कि अल्लाह, हम आपके इकरारी मुजरिम बंदे आपके सामने हाजिर है। ये रमजान का मुकद्दस महीना है और आप इस मुबारक महीने में आपकी रहमतें हवाओं की तरह चलती हैं, आपकी रहमतें बारिशों की तरह बरसती हैं। ये अल्लाह, हम अपनी तरफ से और तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से आपके सामने रहमत और मगफिरत की भीख मांगने के लिए आए। और हर मुसलमान इस बात की कोशिश करे कि हर फर्ज नमाज के बाद इस बात का एहतमाम करे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने गुनाह करके अपने जानों पर जुल्म कर दिया, ये हमारी गलती ही। अगर आपने हम पर रहम नहीं फरमाया और हमारी मगफिरत नहीं की, लतकुनन्ना मिनल खासिरीन, तो हमारा तो घाटा होगा, हम तो नुकसान उठाने वालों में से होंगे। तो ऐ हमारे परवरदिगार, हम इकरार करते हैं हमारे गुनाहों का, हमारी बख्शिश फरमा दीजिए। इस बात की, इस दुआओं का एहतमाम करे हर मुसलमान, हर नमाज के बाद रमजान। ठीक है भाई। और दूसरी चीज जिसका हमें खास ख्याल रखना है कि रमजान के इस मुबारक महीने में हम अल्लाह के हुक्म के खातिर सुबह सवेरे तहज्जुद में सहर खाने के लिए उठते हैं, तो फिर क्यों ना हम कुछ वक्त पहले उठें और कुछ देर पहले उठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने 2, 4, 6 रकात हम नफल पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े। और क्यों पढ़े? क्योंकि वो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ऐलान करने वाला ऐलान करता है और आवाज लगाता है, अला हल मिन मुस्तगफिर फागफिर लहा, है कोई मगफिरत का तरफदार, है कोई अपनी गुनाहों की माफी कराने वाला मुझसे, कि वो मुझसे माफी मांगे तो मैं उसके गुनाहों को माफ करूं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ऐलान किया जाता है हर रोज। कितने प्यारे हमारे अल्लाह हैं, कितने हमारे अच्छे अल्लाह हैं। जरा आप गौर कीजिए,
इस दुनिया में, इस 2 की दुनिया में अगर किसी मोहल्ले में रहने वाला सेठ, कोई मालदार, कोई बड़ा आदमी जिसके दिल में इंसानियत के लिए रहम और करम होता है, इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा होता है, तो ऐसा एक सेठ किसी मोहल्ले में, किसी मालदार आदमी सुबह सवेरे वो खुद या अपने किसी नौकर के जरिए से ऐलान करवाए अपने मोहल्ले में कि भाई सुबह के 6 बजे फुला फुला सेठ के मकान पर हाजिर, जो भी हाजिर होगा उसको 5-5 हजार रुपए खर्चे के लिए दिए जाएंगे। अगर फुला सेठ ने अगर ऐलान कराया, और उसका जज्बा क्या है कि भाई ये ऐलान इस वजह से करा रहा है कि मैं जब ऐलान करूंगा तो लोग आएंगे, गरीब मोहल्ले के लोग आएंगे, वो 5-5 हजार रुपए जब उनको मिलेंगे तो उनका फायदा होगा, उनके राशन पानी का उनका इंतजाम होगा, ये सोचकर वो ऐलान कर रहा है। बजाहिर उस सेठ का कोई फायदा नजर आ रहा है कि भाई इसमें दुनियावी एतबार से उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा उसका नुकसान है, उसके पैसे जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमदर्दी और गमखारी का जज्बा है। इस वजह से वो ऐलान करवा रहा है कि जो भी सुबह सुबह फुला सेठ के घर आएगा उसको 5,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि उसको कोई फायदा नहीं, उसका नुकसान है। तो आप मुझे बताइए, हम में से हर एक जाएगा कि नहीं उसके पास? जाएगा, क्योंकि हमारा फायदा है। तो जब एक दुनिया में एक सेठ 5-5 हजार रुपए का देने का ऐलान करता है सिर्फ जज्बात और खरखाई के जज्बे से, तो हम लोग जाते हैं, तो वो तो अहकमुल हाकिमीन है, वो भी बादशाहों के बादशाह है, वो खुद आकर ये ऐलान करवा रहा है कि भाई है कोई मगफिरत की भीख मांगने वाला, है कोई अपने गुनाहों की माफी कराने वाला मुझसे, जो मगफिरत की भीख मांगे और मुझसे मांगे कि अल्लाह मेरे गुनाहों से मुझे माफ कर दीजिए, तो मैं उसके गुनाहों की बख्शिश कर दूं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करवा रहे हैं, और इसकी खबर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में दी है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो इसकी क्या जरूरत है? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं कराते ऐलान तो अल्लाह का क्या नुकसान है इसमें? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ऐलान के जरिए से ये बतलाना चाहते हैं कि जब बंदे सुबह सवेरे उठकर मगफिरत की भीख मांगेंगे और मुझसे गुनाहों की भीख मांगेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहते हैं कि जब वो मगफिरत की भीख मांगेंगे मैं उनको माफ करूंगा, ताकि वो जहन्नम के अजाब से बच सकेंगे और जन्नत में जाने वाले बन सकेंगे। ये मकसद है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस रमजान के महीने में हम सुबह सवेरे उठकर अल्लाह से क्या करें भाई? बोले, अपनी मगफिरत की भीख मांगे, गुनाहों से माफी मांगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और फिर क्योंकि रमजान का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है, इसके एक एक लम्हे से, एक एक सेकंड से हमें फायदा उठाने की जरूरत है। और इस महीने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपने गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला के सामने माफी तलाफी कर ले, तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे भाई सब। और फिर इस बात का जायजा ले इस मुबारक महीने में कि भाई इस मुबारक महीने के आने पर हमारे अंदर तकवा पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ, गुनाहों को छोड़ने का जज्बा पैदा हुआ या नहीं पैदा हुआ, हमारे अंदर इस बात का एहसास पैदा हुआ कि नहीं कि हमें एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब किताब देना है हर चीज का। अगर ये तमाम चीजें, ये एहसास हमारे अंदर पैदा हुआ है और हो रहा है, तब तो ये महीना हमारे लिए मुबारक है। और अगर खुदा ना खास्ता ये तमाम चीजें हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही, तकवा पैदा नहीं हो रहा, अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देने का एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा, तो फिर ये महीना भी हमारा ऐसे ही गुजार हम रहे हैं जैसे हम रमजान से पहले गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहे थे। और खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे कहीं ऐसा न हो कि हम उस बद्दुआ में के मुस्तहिक न हो जाएं जो बद्दुआ हजरत जिब्राइल ने की थी कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का मुबारक महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत न करा सके। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कही थी, अल्लाह न करे कि हम उस बद्दुआ के मुस्तहिक हो। लिहाजा इस बद्दुआ से बचने के लिए हमें चाहिए कि तकवे को अपने अंदर लाने की फिक्र और कोशिश करे, गुनाहों से बचते हुए पूरा महीने गुजारने की कोशिश करे। ठीक है भाई? तो गर्ज ये कि ये पूरा महीना इबादतों के जरिए से, रोज़ों के जरिए से, तिलावतों के जरिए से और तहज्जुदों के जरिए से और नफली इबादतों के जरिए से और इन तमाम इबादतों का एहतमाम कर कर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का एहतमाम करें, अपने अंदर तक़वा पैदा करने का एहतमाम करें। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस महीने के गुजरने से पहले अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है भाई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हमने एक चैनल चालू किया है यूट्यूब पर। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि दीन के अहकामात बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके, अल्लाह के बहुत बंदों तक पहुँच सके। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को, जिसका नाम गुलाम मोहम्मद कासमी है, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जो भी अहकामात रहेंगे, दीनी अहकामात, दीनी मालूमात, दीनी बयानात, वो आप हज़रात तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैर।